Everybody ready for the peak state programming? Or do you want to wait for some other people? Okay. Let me quickly send this and so anybody did that Luke Coutinho's meditation? It's really, really good. So actually in that meditation, it allows you to actually imagine each and every area of your life, like visualize greatly. So that meditation is really, really good. If you want to do it, you can definitely do it every day, maybe before sleeping or um, after you wake up immediately also you can do it. Once you get the hang of this gratitude practice, you know. So like after you wake up, you can maybe do the gratitude practice first, and then you can do this meditation. So up to you. Okay, so let's do our peak state programming. Peak. Stand in a running position with the right leg in the front. Everybody hearing? Raise in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, faster. It's your morning. Yes. It will be very effective. Keep running, fast. Yes, come on, fast. Still faster, yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, very nice. I am the winner. And you say to yourself, we all are the winners. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. I think sound is coming to everyone. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. And now, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. We all are the winners. I am the winner. We all are the winners. And now we say to ourselves, I can. I can. I can. I will. I must. I can. I will. I must. Thank you so much. Okay, so who would like to read today? Hatim, would you like to read? Yes, sure, Olivia. You seem like, are you still sleepy? No, not at all. Okay, perfect. Morning, my voice is a little bit down, but I'm not sleepy actually. Perfect. Okay. So here I am sharing the screen. Let me scroll it down. Hold on, please. Okay, so now again, day 15, we have the magically heal your relationships. So today, actually, you are going to work on your difficult relations. Okay, so you all remember that. And yeah, so what do you all see in this picture? There's a photo album on a desk and magical sparkles coming out of that. Mm-hmm. And like, can you see like there is a kind of a photo is broken in between? Can you see that?
उसमें Yes, तिराड़ yes. पड़ी हुई हो ऐसे लग रहा है फोटो को देख के। तो यहाँ पे हम आज yes. पूरे डिफिकल्ट रिलेशंस की बात करेंगे, जहाँ पे ऐसे आपके कोई भी रिलेशन है जो कोई भी रीजन की वजह से वो टूट गए थे, और आज आप उसके ऊपर काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, रोंडा बर्न सिखाएंगे हमें। So everybody getting the sound. Binita ji asking, she is not, she cannot hear anything. Yes, yes, we can hear you. Exactly. So Binita ji, there should be some problem at your side. Yeah, maybe you can just leave and join again, and actually check your own sound in your phone or whatever. If you're using the laptop, check it. Okay, so let's start. I'll scroll it down. Okay, you can start, Hatim. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. We are faced with a difficult relationship, a challenging situation in a relationship in almost all cases. We are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have had with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Yes. So here, what they're saying is, if you are if you have a difficult or broken relationship, क्या होता है कि आपको लगता है अभी कि यार उन्होंने मेरा बिल्कुल दिल तोड़ दिया था उस टाइम पे, या कुछ भी है, कोई भी रीजन हो सकता है ब्रोकन रिलेशनशिप के लिए। मे बी इन्होंने आपको कुछ ऐसा धोखा दिया हो पास्ट में कि जो आप नहीं भूल पा रहे हो। मे बी इट्स अ हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, कोई भी हो सकता है। मे बी इट्स अ पार्टनर, बॉस, बिजनेस क्लाइंट, कलीग हो सकता है, मदर और फादर इन लॉ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है कि किसी के साथ अगर आपकी एक बार कुछ रिलेशन खराब हुआ, वहां पे आपने उसको नेगेटिव थॉट दे दिया, कुछ भी हर्ट फील किया या जो भी, यानी वो आप नीचे लाइन के नीचे वाले इमोशंस में चले गए थे वहां पे, और एक पैटर्न बन गया। और जैसे 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 टाइम जाता गया, उसी टाइम के साथ आपकी रिलेशन और खराब होती गई। आप अपने पास्ट में जाके देख सकते हो कि किसी के साथ थोड़े सा कुछ हुआ था, मे बी फ्रेंड के साथ। मान लो कि आपके, मान लो, चलो एक यहाँ पे एग्जांपल लेते कि स्कूल में आपकी बहुत ही अच्छी किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, कुछ एक ऐसी चीज हुई कि जहां से आपका पूरा ही रिलेशन ही टूट गया। कुछ ऐसा उन्होंने किया, आपका मे बी ईगो हर्ट हुआ या जो भी था, आपने सोचा कि नहीं अब तो मैं इसके साथ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, जो भी है, और वैसे करके आपका पूरा रिलेशन बिल्कुल डेटीरियोरेट हो गया। तो यहाँ पे आपको आज क्या करना है, ये इतना समझ लीजिए कि अगर रिलेशनशिप यहाँ पे खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं पे आप भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। और अभी भी ये आपके, अब जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हाथ में, तो ये आपके पास ही है कि आप ये रिलेशन को बेटर बेटर बना सकते हो। और एटलीस्ट आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे अभी वो रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं बनाना है, नहीं चेंज करना है, तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट आप उनको माफ करना बहुत जरूरी है। अपने खुद के लिए, अपने अपने खुद की आत्मा के लिए आपको वो पर्सन को माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से हम क्या करेंगे, उनके लिए जो जिनके भी साथ, मान लो उनके साथ ऐसा रिलेशन था कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो भी उनके बारे में कुछ अच्छा, तो भी आज आपको ये करना ही पड़ेगा।
सो इसीलिए let's read further. Let me scroll it down. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate these feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha is written in Sarka, founder of Buddhism. Bad feelings about another person. तो यहाँ पे ये हमने पावर बुक में भी पढ़ा था, मतलब कल ही पढ़ा था हमने कि क्या होता है कि जब आप एंगर को अंदर अपने आप रखते हो, अपने अंदर कोई भी चीज को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, अगर आपके अंदर एंगर भरा हुआ है या कोई हर्ट भरा हुआ है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, तो क्या होता है उसके इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि आप एक कोल को, जैसे कोयले को आप अपने हाथ में होल्ड कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है कि आप उसके ऊपर फेंकोगे। वो एकदम हॉट कोल है, बहुत ही गर्म कोयला है, उसको आप हाथ में लिए हुए हो और चाहते हो कि किसी और पे फेंकोगे, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आपका ही हाथ जल रहा है उससे। तो ये एक गौतम बुद्धा ने ये बहुत ही डीप चीज कही है यहाँ पे कि अगर आप किसी से आप हर्ट हुए हो, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने क्या किया, आपका क्या है, आप अंदर अभी भी वो फीलिंग्स रख के और अपना नुकसान करना चाहते हो, या उसको छोड़ के लेट इट गो करके आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। उनको अपने कर्म के ऊपर छोड़ दो, उन्होंने जो भी किया, उनका जो भी हालात थे। मैंने आज कंपैशन की भी बात की थी, जो पावर बुक में हम उसके बाद हम जो हाथ थॉट अपने किया था, उसमें हमने कंपैशन के बारे में भी बात की थी। तो आप एक कंपैशन की तरह उनको देखो कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो कुछ ना कुछ उस टाइम पे रीजन होगा उनके पीछे। ओके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट hurt or anger or whatever it is, and you have to forgive that person. तो ये forgiveness हम आज कैसे करेंगे, उनके बारे में कोई भी ऐसी 10 बात अच्छी लिखेंगे, भले कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना लग रहा हो, आपको वो 10 अच्छी बातें उनके लिए ढूंढनी है और आज लिखनी है, नो मैटर व्हाट। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day. As well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है कि मान लो कि किसी का डिवोर्स हो गया है, तो जो भी वो पर्सन है उसके साथ अभी भी कहीं ना कहीं पे अगर आप जुड़े हुए हो आपके थ्रू योर चिल्ड्रन, तो भले रिलेशनशिप जो भी हो, अगर वो अच्छी हो ना हो, कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको रियलाइज करना है कि आपके बच्चे ही नहीं होते अगर आपका एक्स पार्टनर नहीं होता। यहाँ पे ये ऐसा समझाने की वो कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। तो आपको अभी ये जो रिलेशन था, भले चलो वो जो भी हुआ, आपका डिवोर्स हो गया, जो भी है, यानी ये यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो भी हुआ, वो पार्टनर के साथ अभी भले रह रहे कि नहीं रह रहे, पर एटलीस्ट वो वाले जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन है, उसमें पीस और हार्मनी लाके आप अपने एग्जाम्पल से बच्चों को भी ये सिखाएंगे कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही बड़ा एक टूल है लाइफ में, ग्रेटेस्ट टूल फॉर देयर लाइफ। तो ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो अपने एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमेशा याद रखना, आप जैसा भी करोगे, आप जैसा भी
आपका ओरा होगा, आपके वाइब्रेशंस होंगे, वो आपके बच्चे कैच करते हैं। अगर आप कोई नेगेटिविटी में हो तो समझ लेना आपके बच्चे भी वो कैच कर रहे हैं। कुछ ना कुछ वो चीजें आपके बच्चों में भी जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए भी, जैसे हम अभी ऐसा करते कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, अपने बच्चों को हम इतनी जगह पे लगते हैं कि यानी अलग अलग प्रोग्राम्स में रख देते हैं, इतना सब कुछ उनको सिखाना है हमें। पर सबसे ज्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो बच्चों को पॉजिटिविटी सिखाए, अच्छे संस्कार सिखाए। कैसे सिखाएंगे आप? ऐसा बोल के भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे रह रहे हो अपने घर में कि आपको देख के ही एक एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के लिए बनते हो, आप आपके बच्चे आपको देख के ही सीखते हैं। उनको स्पेशल बिठा के सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपसे ही सीखेंगे कि कैसे हार्मनी और पीस लाना है लाइफ में, और कैसे पीस और हार्मनी हमें सभी चीजों में अफेक्ट करता है। अगर कोई नेगेटिविटी पकड़ के हम बैठे होंगे तो बच्चे भी सीखेंगे उसी से। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे समझने की जरूरी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can cause gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. या My तो mother यहाँ and पे father, ग्रेटिट्यूड जब आप करते हो तो कोई इमोशनल पेन आपके अंदर होगा वो रिलेशनशिप को लेके। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया था कि उनके एक्स हस्बैंड को लेके अगर उनको कोई कुछ भी अगर पेन था, पर जैसे ही ग्रेटिट्यूड करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटिट्यूड करने के बाद किसी का नहीं, ग्रेटिट्यूड करने के बाद क्या होगा? आप ही अंदर से इतना अच्छा फील करोगे, आपको लगेगा कि आपका जो पेन था वो धीरे 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 हील हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ कितनी सारी ऐसी स्टडीज हुई है जहाँ पे इवन साइकोलॉजिस्ट को भी पता चला है कि अगर आप कोई रिसेंटमेंट रखते हो अपनी बॉडी में बहुत टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू कीप एनी रिसेंटमेंट अगेंस्ट एनीबडी, और इफ यू कीप एनीथिंग लाइक कोई हर्ट है आपके अंदर, किसी के लिए आपने उसको पकड़ के रखा है अपने अंदर, उसको जाने नहीं दिया है, तो वो कुछ ना कुछ डिजीज में कन्वर्ट होता है आगे जाके। ये आपको बहुत ही समझनी जरूरी है यहाँ पे कि आपकी बॉडी के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है कि आप अपने अंदर कोई भी ऐसा एंगर, हर्ट या पेन किसी भी तरह का किसी को लेके आप अपने अंदर रखे। ये आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसी चीज में फिर कन्वर्ट होता है। कोई भी बड़ी डिजीज हो सकती है। और कितनी सारी इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। मैं हमेशा पढ़ती हूँ, कितने सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे भी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर किसी को ये कोई भी ये बड़ी बड़ी जब बीमारियां होती है तो इसी की वजह से होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपने वो नेगेटिविटी को अपने घर में पाल के रखा हुआ है, वो भी बहुत सालों के लिए। इसीलिए ये सब बीमारियां आती है, बड़ी बड़ी जो डिसीज बोलते हैं। तो डिस इज जो आपका जो नॉर्मल सी होनी चाहिए आपके बॉडी में वो नहीं रहती है, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वो धीरे धीरे करके किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप पूरी तरह से समझ ले, किसी को भी माफ करना बहुत जरूरी है। और अब जब ग्रेटिट्यूड करोगे तो आप ही देखोगे कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे 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 आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड करोगे, जैसे जैसे उनको माफ करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी खुद की हीलिंग होगी अंदर से। तो ये बहुत ही यहाँ पे उन्होंने अपनी पेरेंट्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। लेट्स रीड फर्दर। my mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I've ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief.
After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उनके फादर जब चले गए, ये भी उसी टाइम की बात है जब वो एकदम डिप्रेस हो गई थी और उसको ये जो बुक उन्होंने उनकी डॉटर ने उनको लाके दी थी, तभी उसी टाइम पे उनके फादर भी चले गए थे रोंडा बन के। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उनकी जो मदर थी वो बिकॉज दे हैड अ वेरी वेरी गुड रिलेशन, तो ऑफ कोर्स उनको बहुत ही मतलब फील हुआ होगा उनके जाने के बाद। वो इनॉर्मस ग्रीफ में से वो गुजर रही थी, बहुत ही बड़े दुख में से वो गुजर रही थी बिकॉज हर हस्बैंड डाइड एट दैट टाइम। तो अभी क्या हुआ, अगर आप उसको भी पकड़ के रखते हो अपने अंदर, कोई भी हर्ट रखते हो, कोई अगर माना कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है, तो ये भी आप बहुत ही अपने साथ तो बुरा कर रहे हो, उसके उसके साथ भी बुरा कर रहे हो एक्चुअली। ये अगर आप किसी को, अगर कोई ऑलरेडी चला गया है तो उसकी कुछ ना कुछ नई लाइफ बिगिन हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि आपको अपने आप को भी फ्री करना है उनके अटैचमेंट से, और उनको भी आपको फ्री करना है। तो यहाँ पे जैसे ही इनकी मम्मी ने जैसे ही ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज किया, तो इंस्टेड ऑफ हर डिस्पाइट ऑफ हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन, जितना भी उनको दुख था धीरे 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 वो कम होता गया। पहले तो वो पास्ट में जाके इतना ग्रेटिट्यूड किया कि जो जो उनको उनके हस्बैंड के साथ उन्होंने जो टाइम बिताया था, जो भी अच्छा टाइम था, जो भी हैप्पीनेस थी, वो सभी के लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया फर्स्ट। धीरे 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 उनका पेन कम होता गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर में जाके अपने लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड की चीजें ढूंढी। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आप पेन में होते हो, अब जब आप ग्रीफ में होते हो, उसमें ग्रेटिट्यूड करना ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, तो भी आपको पता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके सिवाय आपके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास। तो जैसे ही इन्होंने फ्यूचर के लिए भी कुछ कुछ चीजें ढूंढ के उन्होंने स्टार्ट की, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ मैजिकल होती गई। उन जो जो चीज वो अपने हस्बैंड के साथ उस टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, वो चीजों को लेके उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया, और वो उसके बाद उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से टर्न आउट हो चुकी। क्योंकि यहाँ पे समझे कि चलो आपके उनके हस्बैंड तो चले गए, राइट, वो तो अभी आने तो नहीं वाले हैं। जितना भी वो पेन ग्रीफ जो भी करेंगे वो वापस तो नहीं आने वाले, राइट। तो यहाँ पे क्या समझने की बात है कि आपकी तो जिंदगी है आपके पास, वो तो है। आप अपनी लाइफ को अभी कैसे अच्छे से आप जियो, जितनी भी आपकी लाइफ बची है वो बहुत जरूरी है। कि अगर आप अच्छे से जीते हो, आप लव देते हो, आप खुश रहते हो, तो आपके आसपास के भी कितने लोगों की लाइफ आप सुधार सकते हो जस्ट बाय गिविंग लव, जो हम पावर बुक में भी अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया विद एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और वो इतना ट्रैवल करना चाहती थी वो, जो उनके साथ नहीं कर पाती थी उनके हस्बैंड के साथ। तो अभी उन्होंने क्या किया, ट्रैवल, इतना ट्रैवल किया उन्होंने, अपनी पूरी सभी उनकी ड्रीम्स उन्होंने कंप्लीट किए। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Hatim, you're on mute, I guess. Oh, sorry. Yes, yes. Yes. For today's practice, you're going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude.
Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Think back to the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person they were there, because they are there. या सो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि जो भी अगर आपके पास्ट में कोई भी ऐसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप थी या है अभी भी अगर है तो आपको क्या करना है कि जब वो खराब हुई थी वो रिलेशन, मैंने अभी आपका एग्जांपल लिया था कि स्कूल में मान लो आपका कोई फ्रेंड था या कोई फ्रेंड थी जिसके साथ एक ऐसी चीज हुई और आपका दोनों का रिलेशन टूट गया, कोई भी कारण की वजह से, या तो आपने कुछ उसमें नेगेटिविटी दे दी या सामने वाले ने ऐसा कुछ किया, आपका ईगो था, कुछ भी, जो भी रीजन है अभी उसको भूल जाओ। और उससे पहले आपका जो रिलेशन था उसके साथ, उसको याद करके आज आपको लिस्ट बनानी है, ऐसी 10 चीजें ढूंढनी है जिसमें से आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हो, शुक्राना फील करते हो उनके बारे में। तो आप आज आपको ये करना है। कितनी आप या तो आप अपने खुद के साथ उनके रिलेशन का वो भी लिख सकते हो या तो उनकी ऐसी क्वालिटीज ढूंढ के लिख सकते हो जो बहुत ही अच्छी थी उनमें, उनके अंदर। मान लो आपका अगर फ्रेंड था या फ्रेंड थी तो उसमें कौन सी अच्छी क्वालिटीज थी, ये आप ढूंढ के भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है कि इनिशियली आप लिखोगे आपको इतने फीलिंग्स नहीं आएगी, पर जैसे 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 7 पे गए, 8 पे गए, 9 पे गए, 10 पे गए, वहां तक तो आप इतना अंदर अपने आप को भर चुके होगे अच्छी फीलिंग्स के साथ कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इवन रोना भी आ जाएगा, इतनी आपके अंदर फीलिंग्स वो हो जाएगी। और वहां पे कहीं ना कहीं पे आपको रियलाइज भी होगा कि यार कितनी अच्छी थी वो, जो भी पर्सन थी या पर्सन था वो कितना अच्छा था, और हमारा रिलेशन वॉट एवर रीजन की वजह से टूट गया है, चलो दैट्स ओके, बट एटलीस्ट नाउ यू आर फीलिंग सो मच ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ये ग्रेटिट्यूड किया और वो पर्सन के भले आपने किसी के साथ उनके साथ कभी बात की नहीं हो, बहुत साल हो गए हो आपने बात नहीं की, पर ऐसा होगा कि आपके ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद कुछ ना कुछ आपका उनके साथ वापस कनेक्शन भी हो सकता है। मेरे साथ हुआ है। मेरी एक ऐसा एक रिलेशन था जिसको लेके बहुत डिटेरियोरेट हो गया था वो रिलेशन, और फिर तो मान लो एक फैमिली का ही था, तो उसके बाद तो ऐसा था कि बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका था। कोई कोई चीजें ऐसी थी जो मैं करती थी उनको पसंद नहीं थी बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस इश्यूज। तो वो रिलेशन काफी हद तक ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका था। जैसे ही मैंने ये ग्रेटिट्यूड किया था उस टाइम पे मैं रो भी गई थी उनके बारे में लिखते लिखते कि क्या क्या उनमें अच्छाइयां हैं। यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ था, दूसरे ही दिन किसी न किसी ग्रुप में हम लोग साथ में हैं, तो दूसरे ही दिन वो ग्रुप में उनके साथ मेरी ऐसे ही कन्वर्सेशन हुई जो कभी पहले कभी नहीं हुई थी। यू वॉन्ट बिलीव इट। सो ग्रेटिट्यूड में बहुत ही बड़ा मैजिकल पावर है। किसी के भी लिए आप जब शुक्राना करते हो, आप अच्छा फील करते हो अंदर से, तो आपकी फीलिंग्स उनके तक भी पहुंचती है क्योंकि आपकी सिंसियर फीलिंग होती है, आपके दिल से निकली हुई वो फीलिंग्स होती है, तो वो जरूर पहुंचती है। एटलीस्ट अभी हमारा रिलेशन, चलो मान लो बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी फार अवे, बट स्टिल वी हैव अ गुड रिलेशन। इनफैक्ट एक बार हमारी वीडियो कॉल पे भी बात हुई, कैन यू बिलीव इट। जिनके साथ मैं बरसों से मैं इंडिया भी जाती हूँ, मैं नहीं मिलती थी, उनके साथ मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात हुई अभी जब आफ्टर आई डिड दिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं कि मैंने एक बार, मैंने 2-3 बार उनके लिए ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दी जब ये मैं ये वाला चैप्टर लेती थी तब।
तो आप भी आज खोजे कोई भी ऐसा रिलेशन को ढूंढ ले और आप ये करें। यानी आपके लिए ये कल का चैप्टर है, एक्चुअली कल का होगा आपका प्रैक्टिस। तो कल आप शांति से बैठो और ऐसे पर्सन को ले लो जिनके लिए आपको कुछ भी अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है। तो ये आपको अपने ये प्रैक्टिस से क्या होगा, आप अपने मन को बिल्कुल प्योरीफाई कर रहे हो, ये इतना समझ लो। और ये सब प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर जो चेंज आता है वो बहुत ही मैजिकल होता है। जैसे जैसे आप ये सब नेगेटिव चीजों को निकालते हो, अपने माइंड के ब्लॉक्स को हटाते हो, वैसे 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 आप और अच्छे हैप्पी पर्सन बनते जाओगे। क्योंकि अभी क्या होता है, ये सब चीजें आपको होल्ड बैक कर रही है कहीं ना कहीं पे। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। This magical practice is not about who is right or wrong. Now, no matter what you feel to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. या Dash, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जैसे आप ये एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है कि जैसे अभी आप मान लो कि आपको गोल्ड गोल्ड करना है, जो खोदते हैं ना, गोल्ड निकालते हैं, जो गोल्ड माइन बोलते हैं जिसको, गोल्ड माइनिंग। तो उसमें आप क्या करते हैं, खोद के बहुत ही ऊपर पहले तो इतनी सारी डर्ट होती है, कुछ ना कुछ कंकर पत्थर क्या क्या होता है उसके ऊपर। पर जैसे ही आप और डिग करते हो, तो नीचे जाके कहीं पे आपको गोल्ड मिलता है। तो इसी तरह से आपको भले ये रिलेशनशिप में आपको ऊपर ऊपर से बहुत सारे नेगेटिविटी दिख रही है अभी, कि नहीं यार ये तो पर्सन ऐसा था, मुझे तो उसके इस बारे में नहीं लिखना है, जो भी आपके अंदर अभी आ रहा है, जो आपका माइंड बोलेगा आपको। पर जैसे जैसे आप डिग करते जाओगे, जैसे जैसे करोगे, तो आपको ही पता चलेगा कि वाओ, यहाँ पे तो गोल्ड था, ये तो गोल्ड माइन है यहाँ पे। तो जैसे जैसे पंप पत्थर कंकर सब हट जाएंगे, आपको ही फील होगा कि यस, इतना भी बुरा नहीं है वो पर्सन, और बुरा नहीं था जो भी था। और आप उनके बारे में इसी आराम से 10 चीजें लिख पाओगे कि हाँ हाँ इसमें ये एक बड़ा पिक्चर में, जो हमेशा बोलती है कि एक बिगर पिक्चर आप देख पाओगे, एक कंपैशन की नजर से उनको देख पाओगे। तो ये इसीलिए ये आज की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज करें इसको, बिल्कुल डिस्काउंट मत कीजिए, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बिलीव मी। तो अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी का मैरिज अगर एंड हो गया है, और वो उनके रिलेशन को लेके कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकती है। ओके, सो लेट्स रीड द होल एग्जाम्पल। name, I'm grateful for what? First example, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number two, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Third, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number four, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Number five, Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Number six, Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number seven, Paul,
I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number 8, Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Number 9, Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. And number 10, Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो भी मतलब ये एग्जाम्पल दिया है कि जो भी थी उनके हस्बैंड पॉल के लिए उन्होंने ये ऐसे ग्रेटिट्यूड ढूंढे हैं कि कैसी कैसी बातें उन्होंने ढूंढी कि लाइक जो आपकी वजह से ये जो चिल्ड्रन है वो है जब मैं सिक थी तो आपने मेरी केयर की या फिर हमारा जो भी हमारे एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे अगर 10 साल का मैरिज था तो हाँ उन्होंने दोनों ने ट्राई किया वो मैरिज बचाने का पर वो जो भी हुआ मतलब तो उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड फील कर रही है उसके लिए जो कुछ ना कुछ तो अच्छा टाइम उन्होंने अपने साथ में बिताया होगा जब मैरिज के बाद तो उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड कर रही है कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वो ग्रेटिट्यूड यहाँ पे कर रही है इवन दो द रिलेशनशिप हैज कम्प्लीटली ब्रोकन तो आपको भी जो भी है आप भी ढूंढ के इजीली आप 10 चीजें फाइंड कर पाओगे जब आप लिखने बैठोगे तो ये आप प्रैक्टिस आज आपको करनी है ओके लेट्स रीड By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the where you don't have any bad feelings toward the person anymore. तो यहाँ पे एक बात भी समझ लीजिए कि अगर आपको किसी के तरफ कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है तो आपको ये तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आपको बिल्कुल वो बैड फीलिंग्स निकल ना जाए कंप्लीटली उसको निकालना है यहाँ पे तो इसीलिए जो आपको मैंने होओपोनोपोना वाला जो मेडिटेशन है वो भी आप कर सकते हो वो भी एक फॉरगिवनेस का अच्छा मेडिटेशन है और उसके साथ साथ आप ये ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हो सेवरल डेज के कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है कभी कभी क्योंकि एक बार में वो शायद वो नेगेटिविटी ना निकले तो आपको बार बार भी करना पड़ेगा सो ये प्लीज कीप दैट इन माइंड और इतना समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है तो द पर्सन इज फुल्ली हार्म्ड इज ओनली एंड ओनली यू सो ये समझना बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है ओके लेट्स रीड If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses the gratitude who receives the benefits in their whole life. तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली है कि ओनली एक अगर कोई दो पर्सन के बीच में अगर रिलेशन जो भी है तो इसमें खाली एक ही पर्सन की जरूरत है ग्रेटिट्यूड करने के लिए यानी चेंज करने के लिए रिलेशन कितनी बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने बोली है और अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो आप वो पर्सन हो जो चेंज कर रहे हैं वो रिलेशन तो आप ही वो पर्सन होगा कि पूरी लाइफ के लिए आपको ये बेनिफिट उसका मिलेगा ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है किसी के भी लिए आपके अंदर अगर कोई भी ग्रजेस है या कुछ भी है अगर आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बिलीव मी यू विल बेनिफिट इमेंसली क्योंकि अगर कुछ भी आप जो लाइफ में देते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो सब आपको वापस मिलता है अगर आप किसी के लिए अच्छी भावना दे रहे हो तो वो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास वापस जरूर आती है ये हमेशा आप याद रखें ओके लेट्स रीड फर्दर If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore,
You will feel a pace and happiness fill you, and at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. हाँ, तो एक एक ये भी है एक चीज कि जैसे अगर आप अपने हार्ट को प्योरीफाई करते जाते हो ग्रेटिट्यूड लिख लिख के, तो क्या होगा, एक रिलेशन के लिए भी आपने कर लिया, मान लो आपने कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड किया, इससे पता है क्या होगा कि आपकी जो और रिलेशनशिप है दूसरे लोगों के साथ, वो भी एक्चुअली मैजिकली इंप्रूव हो जाएगी। ये कैसे होता है पता नहीं, पर ये जरूर होता है, जरूर 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 होता है। मैंने खुद फील किया हुआ है ये, कि अगर आपकी रिलेशन किसी एक पर्सन के साथ खराब थी, वहां पे आपने कुछ ना कुछ उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा, उनको अच्छा विश किया, उनके तरफ लाइट लव लाइट अबंडेंस को भेजा हमेशा ही, और उनके बारे में हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, मैजिकली आपकी बहुत सारी रिलेशनशिप हम चेंज हो जाएगी लाइफ में, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक बात है जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरी है। लेट्स रीड फर्दर। ओके, एक्चुअली इन्होंने एक और बात बोली है जो मैं वापस रीइटरेट करूंगी, कि अगर मान लो भविष्य में भी कुछ ऐसा होता है कि आपको किसी के साथ कुछ आज ही, अभी मैं ये बहुत ही पकड़ती हूँ ये चीज, कि मान लो कि किसी के साथ मेरी ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट हो गई या ऐसी कोई भी सिचुएशन आई जहां पे मुझे इनके लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट आया, मैं तुरंत पेन पेपर पकड़ती हूँ या तो मेरा फोन उठा लेती हूँ, तुरंत ही लिखना चालू करती हूँ, तुरंत ही। अभी 2 दिन पहले मेरे बच्चे के साथ भी मुझे कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें मेरी खुद की कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, तुरंत ही मैंने वो लिखना चालू किया एंड आई फेल्ट सो मच गुड। और तुरंत तुरंत ही रिलेशनशिप में तो चेंज आ ही जाता है। ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा, आगे आप जब 5-5 चीजें आपने लिखी थी अपने अच्छे रिलेशंस के लिए, कोई भी शेयर करना चाहेगा यहाँ पे कि क्या हुआ रिलेशन में? एनीबडी वांट्स टू शेयर? तो ये फ्यूचर में भी ध्यान रखना आप, कि जब भी आपकी कोई रिलेशन में कुछ भी अगर कड़वाहट थोड़ी सी भी स्टार्ट होती है, वहीं से पकड़ लो और वहीं पे ग्रेटिट्यूड कर लो बिफोर इट स्टार्ट्स गेटिंग बिगर। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये करो, क्योंकि रिलेशंस अपनी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। रिलेशंस के बिना हम कुछ नहीं है। आगे भी हमने पढ़ा था कि अगर हम अकेले होते पूरे प्लानेट पे तो हमें कुछ करने में मजा भी नहीं आता। अगर ये मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग अगर यहाँ पे नहीं होते तो मुझे क्या बोलने में ये कुछ भी करने में मजा आता नहीं। इसलिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आते हैं यहाँ पे, आके आप कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, सुनते हैं, और इनकी वजह से मुझे भी इतना एनकरेजमेंट मिलता है। आप अपनी शेयरिंग्स करते हो, पूरा अपना ध्यान लगाते हो, जो भी है बातों अपने सरेंडर करते हो अपने आप को। तो इसीलिए रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, so always keep that in mind. Okay, so let's read magical practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful for. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so आज तो एकदम इजी प्रैक्टिस है। एक ही बंदे को किसी को लेना है आपको, जिनके साथ आपकी अभी डिफिकल्ट रिलेशन है, और उन्हीं के ऊपर आपको 10 चीजें ग्रेटिट्यूड में लिखनी है, ठीक है? तो ये आज की प्रैक्टिस तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस है। हाँ, आपको वहां पे ग्रेटिट्यूड ढूंढना शायद
मुश्किल लगेगा, पर कोई बात नहीं, बिल्कुल कीजिए ये, और बहुत 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 फायदा होगा आपको। ओके, लेट मी एक्चुअली ओपन द पावर बुक, बिकॉज मैं कंप्यूटर यहाँ पे लेके आई तो वो बंद हो गया एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे भी हमने ये सेम चीज पढ़ी थी। कि अगर आप किसी एंगर को होल्ड ऑन टू करते हो तो उससे किसी और के ऊपर फेंकने के लिए भले हाथ में उठाते हो, पर आप खुद ही जलते हो। ओके, सो यहाँ से पढ़ना है, एवरी लिटिल थिंग इज इंक्लूडेड। Actually, did we read Every this? little thing is Anybody remember? Did we read this paragraph or no? Oh, actually, we did not. So, Hatim, please read from here if you get annoyed. okay. If you get annoyed because there was a mix-up in an appointment and you blame the other person for the mix-up, you are using excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you are blaming, but most assuredly you will receive the circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give. Period. तो आपका मतलब जो भी है, आपका जो मूड है या आप जो भी बोलते हो, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मेरी अपॉइंटमेंट मिक्सअप हो गई या कुछ भी हो गया, उसकी वजह से अगर आप एनोइड हो गए, देन यू आर नॉट गिविंग लव, और जो भी आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। अगर आपने उनको ब्लेम करना चालू कर दिया, वो जो भी पर्सन मिक्सअप जो भी हुआ, अगर वो सिचुएशन को ब्लेम करना चालू कर दिया, समझ लो आपने, यू स्टॉप गिविंग लव, और वहीं से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप क्या रिसीव करोगे, जो आप दोगे। तो अगर आप, इफ यू व्हेन यू स्टॉप गिविंग लव, दैट मीन्स यू आर अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो ऐसी ब्लेम करने वाली सिचुएशन और अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत ही समझने की बात होती है कि जो भी सिचुएशन आती है लाइफ में, उसे आराम से एक्सेप्ट कर लो कि चलो ये कुछ ना कुछ या तो मुझे सिखाने आई है। अगर आप ही सोचो कि अपने जब ईसीजी प्रोग्राम करते हैं अपने हार्ट का, तो ऊपर नीचे की लाइन आती है, कभी अगर स्ट्रेट लाइन आ गई मतलब वो हार्ट बंद हो गया। तो वैसी उसी तरह हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते ही रहने वाले हैं। इसका कोई और उपाय नहीं है। यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि पूरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। अगर नहीं आते ना, तो हमें प्रॉब्लम्स बिना की जो लाइफ होती है वो हम एंजॉय ही नहीं कर पाते। इसीलिए अगर रात है तो दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ये चलने ही वाला है। ये लाइफ हमें खुद बताती है। अगर ये हम सनराइज सनसेट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लाइफ हमें खुद बताती है कि भाई कभी ना कभी दिन आएगा, दिन के बाद रात आने ही वाली है। अगर कभी आपका अच्छा मूड चल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपके पसंद की नहीं होगी। कोई बात नहीं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, बस ग्रेटिट्यूड में रहना है, और वो जैसी भी चीजें आई है उसको एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। ये इनिशियली एफर्ट्स लगेंगे, पर इसके बाद ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। आपके सबकॉन्शियस में जैसे कुछ हैबिट्स फिट होती है हमारे सबकॉन्शियस में, वैसे ये भी हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस में फिट हो जाएगी। अभी आपको एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि इनिशियली सभी को एफर्ट्स लगते हैं, और पता नहीं कितने टाइम के लिए भी लगेंगे। कोई बात नहीं, ये प्रोसेस में रहो,
हमेशा ही ये एफर्मेशंस करते रहो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है लाइफ में, कोई बात आने दो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, बस। तो ये अपने आप को हम अभी ये क्या कर रहे हैं, ये सब चीजों से हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ में, कि अगर आगे भी कुछ ऐसा होता है तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अभी धीरे धीरे करके जैसी छोटी कोई चीजें आती है, बड़ी आती है, आप हमेशा प्रिपेयर रहते हो कि हाँ ये कुछ ना कुछ या तो मुझे सिखाने आई है, मुझे समझाने आई है, और ये इसके अंदर मुझे रह के ये सीखना है कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है। उस टाइम पे आपको सीखना है, उस टाइम पे आपको धीरज रखना है, उस टाइम पे आपको पीसफुल रहना है, काम रहना है, हमेशा अपने आप को बोलना है आई एम पीसफुल एंड काम, आई एम पीसफुल एंड आई एम काम। तो आपका ये बीइंग बन जाता है पीसफुल एंड काम। धीरे 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 आप ऐसे हो जाओगे कि कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे, बड़ा पिक्चर देख पाओगे हमेशा, एक विजनरी आप बन जाओगे कि पूरा बिग विजन को आप देख पाओगे उस टाइम पे, अगर कुछ सिचुएशन आती है तो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Every little thing is included. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife. With every little complaint and every moment you criticize anything, you are giving negativity. Complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, the economy, food, your body, your work, customers, businesses, prices, noise, or service seem like small harms, but they bring back with them a whole host of negativity. तो ये बात यहाँ पे बहुत समझ लीजिए। हमको आदत होती है कि न्यूज चैनल देखते रहते हैं हम, या तो फिर वो क्राइम वाला वो सीरियल आता है ना, इंडिया में आता है, क्या नाम है, क्राइम पेट्रोल, वो देख लेते हैं। ऐसी ऐसी कोई सीरियल्स देख लेते हैं जिसमें इतनी नेगेटिविटी बताते हैं कि किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, पता नहीं क्या क्या। मुझे तो इतना टाइम हो चुका है कि मैं ये कुछ भी देखती नहीं हूँ। जब से मुझे पता चला कि हमें लगता है कि हार्मलेस चीजें है, पर कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये चीजें रहती है, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत। आपको लगता होगा कि छोटी छोटी चीजों की कंप्लेन से कुछ नहीं होता, नहीं, वो आपको अफेक्ट कर रही है अपनी लाइफ में। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अगर आप ये मानते हैं कि हाँ आपके हाथ में है अपनी लाइफ को सुधारना, अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये चीजें सब बंद कर दीजिए। छोटी छोटी चीजों के लिए जो आप कंप्लेन करते रहते हो अपनी बॉडी के बारे में कि ये मैं फैट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी बॉडी में ये है, मेरी बॉडी में ये पेन हो रहा है, मेरे हेडेक मुझे हो रहा है, कुछ भी है, पूरी कंप्लेंट्स करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, और देखो क्या होता है। एक बार ये लाइफ जी के देखो। जब आप कोई भी गवर्नमेंट को लेके, मोदी को लेके, या किसी भी चीज को लेके, यहाँ पे जैसे ट्रम्प को लेके सब लोग बोलते रहते हैं, मैं कभी उसमें पड़ती नहीं। अगर वो लोग बोलते भी है, कभी कुछ किसी की नेगेटिव बातें भी करते हैं, तो मैं वहां से चली जाती हूँ। अपने आप को सेफगार्ड करना आपका काम है, किसी और का नहीं है। सो हमेशा अपने आप को सेफगार्ड करो, किसी की भी नेगेटिविटी में मत जाओ, किसी की भी गॉसिप में मत पड़ो, क्योंकि आपको लगता है कि ये हार्मलेस चीजें हैं, पर ये बहुत हार्म करती है। कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस में ठहरती है ये सब चीजें। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आप कंप्लेन करना बिल्कुल छोड़ दो। अगर कोई कंप्लेन आ भी रही है, तो उसको अपने माइंड में से ही उसको उसी टाइम पे चेंज कर दो थॉट्स को। एटलीस्ट बाहर से तो, मुंह से तो बिल्कुल मत निकालो। जैसे ही आप मुंह से निकालते हो, आप इतने सारा पावर दे देते हो उसको, वो चीज को। तो ये करके देखो, बहुत ही अच्छा ये एक प्रैक्टिस होती है कि किसी भी चीज में कोई नेगेटिविटी में पड़ो ही नहीं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी में रखो। अगर कोई कोई ऐसी बात कर भी रहा है, तो हो सके तो या तो आप वो बात को पलट दो, वो बात से निकल जाओ, या तो फिर अगर आपको वहां पे बैठना भी पड़ रहा है,
तो एटलीस्ट अपने आप को डिटैच कर लो वहां से, बहुत जरूरी है। ये आपके खुद के लिए है, ये आपके अपने आपके लिए आप सब चीजें कर रहे हो, तो ये बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Am I audible? Now you are, yeah, I think you were on mute. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, awful. Because when you say these words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you're putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? हाँ, यानी यहाँ पे ये सब तो अपनी वोकेबुलरी देखो, ये एक बात समझ लो, एक ओंटोलॉजी करके जो फील्ड होता है उसमें भी ये होता है कि वर्ड्स का इतना पावर होता है अपनी लाइफ में, इससे कई चीजें हमारे बॉडी में या हमारी लाइफ में बदलती है। तो आप कैसे वर्ड्स अपने अपने आप पूरे दिन में यूज करते हो, अगर गुजराती या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो, उसमें भी अगर कोई ऐसे वर्ड्स हो जो आपको भले ही वो ऐसे ही लगते हैं, आपका अगर आपकी वो हैबिट बन चुकी है वैसे वर्ड्स यूज करने की, तो अभी बी अवेयर एंड चेंज दोज वर्ड्स फ्रॉम योर लाइफ। उनको बिल्कुल निकाल ही दो। टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ऑफुल, ये वर्ड्स तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आते हैं। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि ओ टुडेज वेदर इज टेरिबल, मतलब कितना आपने उसको ज्यादा पावर दे दिया कि वेदर इतना खराब है। ये डिस्गस्टिंग, ऑफुल, ये वर्ड्स में बहुत ज्यादा पावर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। आप ये बोल के ही देखो अभी, अगर आप बोलोगे कि वाह टुडेज वेदर इज सो ऑसम, आई लव इट, और एक जगह पे आप बोल रहे हो कि यार टुडेज वेदर इज टेरिबल, तो यहाँ पे देखो अपनी कितनी खराब फीलिंग्स ये वाले इसके साथ आ रही है, टेरिबल वेदर के साथ। और जैसे ही आप बोलते ऑसम वेदर है, इसके साथ कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही है, बोल के देखो आप। तो ये सब चीजें भी बहुत ध्यान में रखनी है कि वर्ड्स कैसे आप यूज करते हो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Kapil, you can read further. You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love. And that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. All that we send into the lives of others comes back into our own. Edwin Warkham, poet. हाँ, तो ये You जो don't पोएट ने need इन्होंने बोला कि हाँ 1852 1940, सो उन्होंने ये जो बोला कि जो भी हम किसी के लाइफ के लिए बोलते हैं या देते हैं, वो हमारी लाइफ में खुद वापस आता है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आई या कुछ भी आया, मान लो कि हमारे मैरिज में अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, हम हमेशा ही अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहते, एक्सक्यूज करते रहते, अपने आप को जस्टिफाई करते रहते, कुछ ना कुछ लेके अपने ईगो को जस्टिफाई करते रहते, यानी समझ लो यू आर नॉट गिविंग लव। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, सभी चीजों के लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आपकी लाइफ के लिए ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि आप किसी और को ब्लेम करोगे या अपने आप को विक्टिम मोड में लेके जाओगे। इसीलिए अपने आप को जस्टिफाई करना भी छोड़ दो, कहीं कहीं पे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपसे ये आपने ये सोचा था। ये एक्सेप्टेंस रियली इतना जबरदस्त होता है, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो वहीं पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर मान लो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि ये मेरी वजह से ही ये प्रॉब्लम आई या जो ये अभी हो रहा है, मान लो कि रिलेशनशिप में कुछ हो रही है अभी बातें, अगर मैं ये मानना
तैयार ही नहीं हूँ मैं मानने के लिए कि नहीं ये मेरी गलती हो सकती है, कुछ भी पास्ट में से मैं देखने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। मैं बस वही ब्लेम ही करती रहती हूँ कि नहीं इनका ब्लेम है, ये है, वो है, कुछ भी है। देन भूल जाओ कि आपकी रिलेशन कभी भी अच्छी होगी। जैसे ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे, वैसे ही वो सिचुएशन ईज आउट हो जाएगी वहां पे। वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये एक्सेप्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते जाते हो तो उसी के साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजें रियलाइज होगी जो आपके पास्ट में आपने की होगी। मेरे साथ तो ये बहुत ही होता है, इतने सारे रियलाइजेशंस मुझे अभी पास्ट 8 9 10 मंथ्स में हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये और हो ही रहे, एवरी डे कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होता है। और उसके बाद इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि हाँ, एटलीस्ट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। नाउ आई डोंट ब्लेम एनीबडी, नाउ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ and for my own life, for my own finances, for my relationships, everything. Okay, so यहाँ पे अभी कल कल से हम यहाँ से रीड करेंगे. You don't make a connection. Okay, so let's read our heart thought for today. So ये आज का हार्ट थॉट था, आई एम सेंटर्ड इन ट्रूथ एंड पीस. अभी मैं भेज दूंगी जैसे ही अपना ये सेशन खत्म होता है. तो आज का जो हार्ट थॉट है, हीलिंग मीन्स टू मेक होल, to accept all parts of ourselves, not just the parts we like, but all of us. तो जैसे ये आज की मैजिक प्रैक्टिस भी थी, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट रिलेशन को लेके अपने आप को एक्चुअली हम हील कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने आप को हील करना अंदर से बहुत जरूरी है. मेंटली, फिजिकल लेवल पे भी वो हीलिंग होगी, मेंटल लेवल पे भी वो हीलिंग होगी जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो. तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला है कि हीलिंग मीन्स टू मेक अ होल, जो हमारे सभी पार्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी है. अगर हमने ऐसा कुछ पास्ट में किया था जो जिसका दर्द अभी भी हम लेके घूम रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसको हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी है चलो वो हो गया, आई फॉरगिव माई सेल्फ, और आगे बढ़ते हैं. So I can heal myself on all levels. This is a time of compassion and a time of healing. Go within and connect with that part of yourself that knows how to heal. It is possible. Know that you are in the process of healing. This time you discover your healing abilities, abilities that are strong and powerful. You are incredibly capable. So be willing to go to a new level to find abilities and capabilities that you were not aware of, and not to cure a dis-ease, but to truly heal yourself on all possible levels. You are spirit, and being spirit, you are free to save yourself and the world, and so it is. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जिन्होंने जो रिसेंटमेंट या जिसकी वजह से उनको कोई भी बड़ा डिजीज हुआ था, मान लो कैंसर हुआ था या कोई भी ऐसी बड़ी चीज आई थी जो वैसे तो इनक्योरेबल लग रही थी, पर वो भी हील हो गई. कैसे? जैसे ही आपने अपने आप को ओपन किया कि हाँ मुझे हील करना है अपने आप को, उसके बाद जो भी रिसेंटमेंट था, जो भी वो गिल्ट था, जो भी फॉरगिवनेस की जरूरत थी, वो सब करने के बाद धीरे 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 वो हीलिंग स्टार्ट हुई और अपने आप को खुद बिल्कुल हील कर लिया. कई लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने आप को पूरा ही हील कर दिया ऐसी बड़ी बीमारी में से. यहाँ पे एक बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे खुद के मम्मी इन लो है, जो यहाँ पे बानू कॉन्ट्रैक्टर है. उन्होंने अपने आप अपने कैंसर को बिल्कुल कंप्लीटली हील कर दिया. नाउ शी इज कंप्लीटली हेल्दी. 3rd स्टेज का कैंसर था. इन्होंने एफर्मेशंस करके कहीं ना कहीं पे अपने आप को कहीं ना कहीं पे माफ किया, दूसरों लोगों को माफ किया, कहीं ना कहीं पे अपने हार्ट को प्योरीफाई किया और उन्होंने अपने आप को हील किया. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मेरे पास
जो जिनको मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी सी बीमारियां उन्होंने हील की है, only and only with the help of meditation and only with the help of all these healing procedures. तो ये पूरा संभव है। यहाँ पे आज के हार्ट थॉट में यही बताया गया कि आपके अंदर ही वो सब एबिलिटीज है एंड दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। आपको बस खाली ये एक्सेप्ट करना है और आपको अपने आप के हीलिंग को खुद स्टार्ट करना है, दैट्स इट। दूसरा पूरे यूनिवर्स पे छोड़ दो, पूरा अपने आप को सरेंडर कर दो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो आज का हार्ट थॉट भी बहुत ही पावरफुल है। ओके, किसी का चैट में कुछ लिखा है, अच्छा बिनीता जी को जाना था। ओके, सो do you all want to do the meditation or you have something to do? It's 10:25. We can do 10 minutes meditation if you want. Whatever you all feel, I'm ready. I'm okay with it. Thank you, Manisha. Okay, thank you, Amina. All other participants, do you want to do meditation? Grateful session, lovely day. Thank you. Thank you, Manisha. तो प्लीज बताएं, आपको मेडिटेशन करना है या फिर बस यहीं पे? चलो मैं एज्यूम करती हूँ कि सभी को मेडिटेशन करना है। ओके, लेट्स डू इट। वी कैन डू 10 minutes, 10-15 minute meditation. मॉर्निंग में मेडिटेशन करने से बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है, जब सनराइज बिल्कुल हुआ ही होता है उस टाइम पे। If you're an empath and you're sensitive to other people's negative energies, right? And I'm talking about your. Okay, so everybody keep your back straight, hands facing the heavens above. Can you all hear the music? Okay. That's okay, Sarita. Thank you for joining in. Okay, so let's close our eyes. Go deep within yourself. Now take a deep breath in. Fill your stomach with all the air that you inhale. Hold it. Now exhale. Empty your stomach and your whole lungs. Again, take a deep inhale of gratitude. Fill your whole being with gratitude. Exhale out all the negativity.
Again, take a deep breath in. Hold. Fill yourself with love. Exhale. Exhale out the love for everybody around you, for the whole world. Now just for a few minutes, focus on your breathing. Release all the tension and stress in your body. Just relax yourself completely. Relax all parts of your body, fully and completely. Feel that peace within yourself. Now affirm, I am peaceful and calm. Now let's imagine the bluish white light entering your crown chakra from the heavens above. Imagine that bluish white light is now entering your head. It's cleansing all your nerves in your nervous system. क्लींस करके पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा है, पूरी टॉक्सिसिटी जो है उसको अपने साथ अटैच करके लेके नीचे की तरफ मूव हो रही है ब्लूइश वाइट लाइट. Now this light is moving in your Ajna chakra. It's strengthening your wisdom and your intuition, and taking out all the doubts and fears, all the negativity. Now it's moving on your face. It's moving out each cell, rejuvenating them. Now this bluish white light is entering your throat chakra. It's cleansing your throat chakra. It's opening the chakra. It's strengthening your communication. It's strengthening your expression. Now that bluish white light is entering into your heart. It's fully purifying your heart, and it's filling it with so much of love. The bluish light is expanding your heart and filling it with so much love. So much love, joy, compassion, kindness. It's cleansing and purifying. Now it's cascading down, moving down towards your stomach. It's purifying all your organs.
It's purifying your solar plexus. It's strengthening your courage, your self-esteem, all your capabilities of healing, your abilities to heal yourself. Now it's moving down towards the Swadhisthana chakra. It's cleansing, it's purifying your chakra. It's opening. It's opening all your passions. It's opening your forgiveness. It's strengthening your acceptance towards your past. Cleansing all your organs, your reproductive organs and your excretory organs. Now it's moving down towards your hips. And it's cleansing the root chakra in your body. It's strengthening your security. Now you feel so safe because now you trust the process of life. Now this white light is healing all your chakras and moving down from your legs towards your feet and going into the Mother Earth. Now this bluish white light again is circulating from your head towards your toes, going into the Mother Earth. And each time it enters your chakra, each time whenever it enters your chakra, it's cleansing. It's cleansing and healing you. It's healing your body. Now let's invite all of this positive energy by rubbing your palms together. Let's bless our conscious subconscious mind, our Ajna chakra, eyes, nose, our face, our ears, throat and neck, shoulders, hands, fingers, our back and spine, hips, our heart, lungs, chest area, whole digestive system and reproductive organs, excretory organs, thighs, knees, calves, feet, sole of the feet. Now let's join our hands together in our heart area and say thanks to trillions and trillions of cells in our body. Which are healing itself continuously, rejuvenating. Let's thank all of our fibers and tissues in the body, all the muscles, our skin, our protection layers in our body. Thank you, thank you, thank you to our immunity, which keeps us protected all the time. Thank you, thank you, thank you. Okay. Okay, so thank you everyone. Thank you for joining in. Thank you. मेडिटेशन में टाइम का पता ही नहीं चलता. What time is it? Okay, 10 minutes. All right, किसी को कोई क्वेश्चन है?
Okay, then see you all tomorrow the same time, 6:45 a.m. Indian Standard Time. Okay, love you all. Love, light, and abundance. Thank you so much. Thank you.